Hello student, today we are going to learn next problem number 3 and your textbook problem number 4, page number 176. Okay, see, I'll show you problem. In that problem we learn goodwill treatment and as well as amount payable to retiring partner. Treatment related to retiring partners. Okay, see, I'll read first problem. Kale, Gore and Pandre were partners sharing profit and losses in the ratio 3 is to 3 is to 2. Means here old ratio is 3 is to 3 is to 2. Their balance sheet as on 31st March 2018 is as follow. The given balance sheet of all partners means all balance sheet they given here liability side. First one balances we see Kale's capital 11,000, Gore's capital 15,000 and Pradhan's capital 8,000. That can be transferred to partner's capital account credit side. Where we transfer this one amount we transfer or posted to partner's capital account credit side. Next one we see here creditors. Creditors amounted rupees 8,900. That can be posted to posted to new balance sheet liability side. That can be posted to new balance sheet liability side. After that, bills payable, same, that one is posted to new balance sheet liability side, where we posted new balance sheet liability side. Then reserve fund is a part of accumulated profit. That's why that amount we distributed to partners in their old ratio. 4,000 can be distributed in the ratio 3 is to 3 is to 2. General reserve amount is distributed, so we posted to partners capital account credit side by general reserve या reserve fund for Kale, Gore and Pandre. Okay. Then see asset side. Asset side first balance they given 10,000. Asset that can be posted to new balance sheet asset side. Plant and machinery posted to new balance sheet asset side 10,700. Livestock is posted to new balance sheet asset side 10,000. Debtors posted to new balance sheet asset side 5,000. Stock posted to new balance sheet asset side 6,600. Bank, here is a working note, that's why that one amount bank account 6,600 at what pending. Okay, after all adjustment we check any addition or subtraction from that particular account, then we post it to न्यू बैलेंस शीट एसेट से. ओके, देखो अभी यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ क्या एग्जैक्टली करना था. लायबिलिटी साइड में जितने भी बैलेंसेस थे उसमें से कैपिटल बैलेंस हमने ट्रांसफ़र किए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. ये तो आपको पता ही होगा, आज तक जो भी बैलेंसेस दिए जाते हैं कैपिटल के हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, दैट्स वाई वी पोस्टेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड. देन उसके बाद जो बैलेंसेस दिए क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल वो हमने पोस्टेड किए थे न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. आफ्टर दैट हमें पता चलता है वहाँ पे रिजर्व फंड भी दिया है. तो रिजर्व फंड इज़ अ पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सो वो रिटायर होने से पहले सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. जितने भी पार्टनर उन सबको क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन देयर ओल्ड रेशियो. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब सबको पता ही है कि जो रिजर्व फंड ने आप पढ़ा होगा आपने, तो जो भी उनको प्रॉफिट मिलता है उससे कुछ परसेंटेज वो साइड में निकाल के रखते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए, मतलब फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है उसके लिए. बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, रिकन्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है. तो जो भी एक्यूमुलेटेड किया हुआ प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो. तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स तीनों भी काले गोरे एंड पांडरे, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके रेशियो में 3:2 में. ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी. देन लायबिलिटी साइड कंप्लीट होगी. बाद में देखते हैं बैलेंस शीट एसेट साइड में क्या दिया है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लाइव स्टॉक, डेटर्स एंड स्टॉक, ये सबकी पोस्टिंग होगी न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड. न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड उनके ऊपर अभी एडजस्टमेंट है, दैट्स वाई इनर कॉलम में लिखेंगे. एंड बाद में दिया है बैंक का बैलेंस. तो बैंक का बैलेंस लिखते समय याद रखो बच्चों कि यहाँ पे बैंक
की अमाउंट डायरेक्टली पोस्ट नहीं करनी है न्यू बैलेंस शीट में। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है, मतलब कोई अमाउंट मतलब अमाउंट पे की होगी या रिसीव हुए होगी, तो वो देखना होगा हमें एडजस्टमेंट में, फिर वो ऐड या लेस करेंगे एंड देन डायरेक्टली फिर पोस्टिंग करेंगे उसकी न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, सी आई रीड एडजस्टमेंट्स। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, टेक्स्ट बुक होना ही चाहिए, नहीं है तो परचेस करो। तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 176 है, वहाँ पे देखो ये ओल्ड बैलेंस शीट दी थी और 177 के ऊपर आपको दिया है, आपको दिए हैं सारी एडजस्टमेंट्स। ऑन 1 अप्रैल 2018 Mr. Pradhan Pandre retired from the firm on following condition. Here Pandre is retired from the business and they given some terms and condition related to after retiring Pandre. Okay, first one, when any partner retire, admit or death, means reconstitution of partnership firm, then all assets and liabilities value are changed. याद रखो, जब कोई पार्टनर ऐड होता है, एडमिट होता है, रिटायर होता है, उसकी डेट होती है, तो उसके बाद जितने भी उनके ओल्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उन सब की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है, दैट कैन बी रीवैल्यूड। सो देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1, एसेट टू बी रीवैल्यूड एज स्टॉक ₹6,300। सी यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू कितनी हो रही है अभी? 6,300। पहले देखो, अगर आपने देखा होगा या आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देखो, उसमें जो भी स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या है? 6,600 है। राइट नाउ वी सी हियर आवर स्टॉक वैल्यू आफ्टर रिटायरिंग पार्टनर वैल्यू इज व्हाट? 6,300. सो हियर दैट पर्टिकुलर स्टॉक इज डिक्रीजेस, अमाउंट है ₹300। 300 रुपीज़ से क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई हम लेस करेंगे दिस वन अमाउंट फ्रॉम स्टॉक ₹300 एंड सेकेंड इफेक्ट वी रिकॉर्डेड revaluation account debit side to stock ₹300. Understood everybody? Second effect we record a revaluation account debit side to stock ₹300. पहला वाला इफेक्ट कहाँ पे होगा? लेस फ्रॉम स्टॉक एंड सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। अंडरस्टूड? देन सेकेंड पढ़ती, बाद में उसके कंटिन्यूली पढ़ती हूँ। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंटिन्यू। प्लांट एंड मशीनरी ₹10,000. Here they given plant and machinery value right now after admitting Pandre ₹10,000. See, and our old balance of plant and machinery 10,700. Means after admitting after retiring partner, that balance is what? Reduce. That balance is what? Reduce, decreases. How many rupees? Amount in rupees 700, because last one amount is what? 10,700 and new amount is what? 10,000. So difference between both one is what? 700, and that can be decreases by ₹700. So we deducted from plant and machinery ₹700 and second effect we recorded revaluation account debit side and machinery ₹700. Understood everybody? देखो यहाँ पे प्रॉपरली समझ के लो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की आफ्टर रिटायरिंग वैल्यू क्या दी है? 10,000 दिए है और पहले 10,700 थी। तो हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस है वो फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, सो उतनी अमाउंट लेस होगी, 700 रुपीज़ लेस होंगे एंड सेकेंड इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट देखते हैं लाइव स्टॉक ₹10,200। लाइव स्टॉक की अमाउंट क्या है? 10,200 है। लाइव स्टॉक की अमाउंट देखो, और स्टॉक की अमाउंट वहाँ पे क्या लिखी है? लाइव स्टॉक की 10,000 लिखी। कितनी लिखी है? लाइव स्टॉक की 10,000. ओल्ड अमाउंट इज व्हाट? 10,000 and new amount is what? 10,200. So here that particular livestock value is increases. Livestock value is what? Increases. So what we do? Add under that livestock ₹200 and second effect revaluation account credit side. देखो मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे लाइफ स्टॉक की पहले वाली वैल्यू थी, ओल्ड वैल्यू थी 10,000। आफ्टर रिटायरिंग वैल्यू क्या हो रही है? 10,200 हो रही है। तो यहाँ पे दिखेगा हमें कि 10,200 है, मतलब 200 से क्या है? बड़ी है। हियर एसेट्स वैल्यू इज व्हाट? इंक्रीजेस, अमाउंट है ₹200। तो उसका पहला इफेक्ट होगा ऐड अंडर दैट स्टॉक लाइव स्टॉक ₹200 एंड सेकेंड इफेक्ट
revaluation account credit side. Second adjustment, goodwill of firm is to be valued at rupees 4,000. However, only partner share in its to be raised in the books and written off immediately. देखो उन्होंने क्या कहा यहाँ पे, द गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड, पूरे वैल्यू क्या है गुडविल की 4,000 है, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल इज व्हाट 4,000. उसमें से हमें किसकी शेयर के लेना है, जो रिटायर हो रहा है. रिटायर कौन हो रहा है, पांड्रे रिटायर हो रहा है. देखो वहाँ पे लिखा भी है हाउएवर ओनली पांड्रे शेयर्स, क्या लेना है हमें, सिर्फ पांड्रे शेयर्स अमाउंट ओनली रेज एंड रिटर्न ऑफ करनी है. क्या करनी है, पांड्रे शेयर्स अमाउंट रेज एंड रिटर्न ऑफ करनी है. तो उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा तो 4,000 दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स कैलकुलेटेड एज पर द ओल्ड रेशियो 4,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8. क्या होगा कैलकुलेशन 4,000, देखो कैलकुलेट करके दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे होगा, फिर अमाउंट चेक करते क्या आ रही है. 4,000 इंटू 2 शेयर थे, टोटल नंबर ऑफ 8 शेयर में से 2 शेयर्स पांड्रे के थे. तो यहाँ पे आंसर देखो क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 1,000. कितने आ रहा है आंसर 1,000. मीन्स इन शेयर ऑफ पांड्रेस अमाउंट क्या है 1,000 है. तो उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल अंडर कॉलम पांड्रे. एंड सेकेंड इफेक्ट होगा रिटर्न ऑफ, तो रिटर्न ऑफ एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर्स को या कंटिन्यू पार्टनर्स को. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल 500 फॉर काले एंड 500 फॉर गोरे. ओके, इन देयर गेन रेशियो, तो गेन रेशियो भी वही आ रहा है 3:1. सो दैट्स वाई वी डिस्ट्रीब्यूटेड दैट वन अमाउंट 500 फॉर काले and 500 for gore. Okay, understood? Okay, next, RDD to be maintained at 10% on debtors. Here debtors amount is 5,000, on 5,000 10% is 500. So we less this one amount from debtors 500 and second effect revaluation account debit side to RDD rupees 500, amounted rupees 500. Next देखो, rupees 1,000 to be written off from creditors. 100 rupees written off from creditors. How many? 100 rupees written off from creditors. So what we do here, less from creditors rupees 100 and second effect creditors के पैसे नहीं दिए, मतलब क्या हो गया हमारे लिए, एक बेनिफिट हो गया, गेन हो गया. दैट्स वाई वी रिकॉर्ड हियर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स रुपीज 100. And last one adjustment they give one amount payable to Mr. Pandre to be transferred to his loan account. जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करने वाले तो वहाँ पे जो भी रिटायरिंग पार्टनर्स का डिफरेंस दिखेगा दैट कैन बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट. कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, लोन अकाउंट को. ओके, इजी प्रॉब्लम है लेकिन ठीक से समझ के लो. ओके, फिर दिखाती हूँ. अभी यहाँ पे देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बनाया है, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ी थी, लाइफ स्टॉक है 6,600, सॉरी स्टॉक है 6,300 और पहले वाला था 6,600. तो डेप्रिसिएट हो रहा था, दैट्स वाई आई राइट हियर इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट. वहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट मैंने लेस किया था फ्रॉम स्टॉक एंड सेकेंड इफेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है टू स्टॉक रुपीज़ 300. फर्स्ट इफेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा था, स्टॉक क्या है 6,600, बाद में लेस होंगे 300. ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट. एंड सेकेंड इफेक्ट वी रिकॉर्डेड हियर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू स्टॉक रुपीज 300. ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी? ओके, सेकेंड इफेक्ट एंड फर्स्ट इफेक्ट दोनों भी इफेक्ट में दिखा है. बाद में देखो क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी रुपीज़ 10,000. क्या हो रहा है, प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट हो रही है 10,000. पहले क्या थी प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट 10,700 और अभी क्या हो रही है 10,000. तो डेप्रिसिएशन हो रहा है 700 से, तो ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट जाएगा, डेप्रिसिएशन हो रहा है मतलब एसेट की वैल्यू
डिक्रीज हो रही है, दैट्स वाई सेकेंड इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू प्लांट एंड मशीनरी ₹700। अंडरस्टूड? ओके। उसके बाद में देखते हैं लाइव स्टॉक ₹10,200। क्या है? 10,200। देखते हैं पहले लाइव स्टॉक की अमाउंट क्या थी, पहले थी 10,000। लाइव स्टॉक की अमाउंट पहले कितनी थी? 10,000। अभी कितनी हो रही है? 10,200। मीन्स हियर एसेट्स वैल्यू इंक्रीजेस, ₹200 से इंक्रीज हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे ऐड करेंगे 200। और उसका सेकेंड इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड टू लॉस लाइव स्टॉक ₹200। अंडरस्टूड? ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट क्या थी? गुडविल इन शेयर ऑफ पांड्रे रेज एंड रिटर्न ऑफ। गुडविल इन शेयर ऑफ पांड्रे रेज एंड रिटर्न ऑफ। तो उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल ₹1,000 in account of Pandre, and second effect return of to remaining partners or continuing partners to goodwill Kai 500 and Gore 500. Understood everybody? Okay. Then after third adjustment, ये थी सेकेंड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट क्या है? मेंटेन 10% RDD। मेंटेन 10% RDD। तो यहाँ पे देखो 10% RDD निकाले हमने, 500 आंसर हो गया तो लेस किया उसमें से। और सेकेंड इफेक्ट होगा हियर एसेट्स वैल्यू डिक्रीजेज, दैट्स वाई सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू RDD ₹500. Understood everybody? After that they given ₹100 to be written off फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स से कितने रुपीज़ रिटर्न ऑफ हो गए? रिटर्न ऑफ हो गया क्रेडिटर्स के ऊपर ₹100। तो फर्स्ट इफेक्ट होगा यहाँ पे क्रेडिटर्स 8,900 थे, उसमें से 100 लेस हो गए। एंड सेकेंड इफेक्ट होगा हियर अभी क्रेडिटर्स के पैसे हमने पे नहीं किए, मतलब हमें क्या हो गया? गेन हो गया, दैट्स वाई सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स ₹100। ओके। तो बाद में क्या करते हैं? इसे टैली करते हैं। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? देखो अभी मैंने बताया सारे इफेक्ट कहाँ पे है, फिर से एक बार बताती हूँ। ये फर्स्ट वन एडजस्टमेंट थी। फर्स्ट वन एडजस्टमेंट में स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लाइव स्टॉक एंड एज वेल एज लाइव स्टॉक, इतने सारे इंक्लूड थे। तो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट थी, ये भी फर्स्ट एडजस्टमेंट से ही था। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। एंड सेकेंड इफेक्ट वी रिकॉर्डेड, देखो यहाँ पे है था स्टॉक, लाइव स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी। ओके, ये थे फर्स्ट एडजस्टमेंट। ये फर्स्ट एडजस्टमेंट के इफेक्ट मैंने अभी दिखाया रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड लिखे। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या थी? गुडविल के ऊपर। तो सेकेंड एडजस्टमेंट का फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे ये 1,000 कैसे आया? वहाँ पे गुडविल की अमाउंट 4,000 थी, तो 4,000 टोटल था, उसमें से इन शेयर ऑफ पांड्रे लिया तो वो 1,000 आया। और सेकेंड इफेक्ट उसे रिटर्न ऑफ करना था, तो ये हो गया सेकेंड इफेक्ट। ओके, अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट बता रही हूँ RDD के बारे में। थर्ड एडजस्टमेंट क्या है? RDD। तो RDD मतलब डेटर्स में से RDD लेस किए है। थर्ड एडजस्टमेंट ये हो गई थर्ड एडजस्टमेंट। और उसका सेकेंड इफेक्ट लिखा है हमने ओके। देन नेक्स्ट वन क्रेडिटर्स के बारे में। तो क्रेडिटर्स में से ₹100 हमने रिटर्न ऑफ किए थे। ये थी हमारी फोर्थ वन एडजस्टमेंट। और उसका फर्स्ट इफेक्ट हमने यहाँ पे किया, सेकेंड इफेक्ट हमने कहाँ पे किया? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड ₹100। ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? देखो बाद में क्या करते, इसे टैली करते तो देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे हमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट टैली करते तो हमें दिख रहा है कि डेबिट साइड ज़्यादा है। डेबिट साइड की टोटल है 1,500। कितनी आ रही है? 1,500 सी। एंड तो दैट्स वाई जो भी टोटल ज़्यादा होती है वो बोथ वन साइड लिखते हैं, तो हमने क्रेडिट साइड में लिखा 1,500। लेकिन डेबिट्स क्रेडिट साइड की टोटल ओनली 300 थी, तो 1,500 में से 300 लेस करते हैं।
तो आंसर आ रहा था 1200, तो 1200 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशियो, मतलब 3:3:2 में। तो आंसर क्या आ रहा है 450 फॉर काळे एंड 300 फॉर पांढरे। ओके, ये हो गया रिवैल्यूएशन लॉस। पार्टनर्स को क्या हो गया, डेबिट साइड डिफरेंस आता है तो प्रॉफिट होता है, क्रेडिट साइड डिफरेंस आता है तो क्या होता है, लॉस। तो यहाँ पे क्या था, लॉस था। यहाँ पे क्या दिखा हमें, लॉस। और वो लॉस ट्रांसफर होता है अभी वहाँ पे क्रेडिट साइड में था, दैट्स वो ट्रांसफर होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। काळे 450, गोरे 450 एंड पांढरे 300। अंडरस्टूड। बाद में क्या करते, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करते। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करने के बाद हमें पता चलता है उनकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है एज कंपेयर टू डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड पहले पांढरे करते, पांढरे की क्रेडिट साइड की टोटल है 10,000, दैट्स वाई वी बोथ वन साइड राइट 10,000। यहाँ पे डेबिट साइड की टोटल करते तो डेबिट साइड में हमें सिर्फ दिख रहा है 300 का बैलेंस। ओके, 10,000 में से 300 लेस करने के बाद हमें डिफरेंस दिखेगा यहाँ पे कितने रुपीस का, 9,700 का। तो उसे नाम देंगे हम उस, क्योंकि हमारे एडजस्टमेंट लास्ट एडजस्टमेंट में बताया जो भी पेबल अमाउंट है उसे नाम क्या देना है, लोन अकाउंट। सो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, लोन अकाउंट। समझ में आया सबको, क्योंकि लास्ट एडजस्टमेंट लिखा है जो भी आफ्टर टैली करने जाते या टैली करने जाते हैं जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो रिटायर हो रहा है वहाँ पे जो भी डिफरेंस दिखेगा वो डिफरेंस हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट को। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। उसका सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे हम, सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पांड्रीज लोन अकाउंट ₹9,700, ₹9,700। ओके, देन नेक्स्ट बाद में गोरे एंड काया अकाउंट टैली करते। तो गोरे अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है हमें 16,500, यहाँ पे भी 16,500 एंड काले का दिख रहा है 12,500। और यहाँ पे देखो वो दोनों के सेम अमाउंट थे 9,050, तो 950 वो लेस करते हैं 12,500 में से, तो डिफरेंस आ रहा है 11,550 एंड 16,000 में से 950 लेस करते तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 15,550। ये हो गया। तो ये बैलेंस एज ए कैपिटल कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरिड डाउन, और से ट्रांसफर होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या सॉरी न्यू बैलेंस शीट पार्टनर्स एज ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे दिखेगा 11,550 एंड 15,550। ये हो गया। बाद में बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में कुछ भी चेंजेस नहीं तो एज इट इज़ वी रिकॉर्डेड दिस वन अमाउंट 6,600 लिखी हमने, ठीक है। देर इज़ नो एनी चेंजेस बिटवीन दिस वन अमाउंट, तो डायरेक्टली हमने लिख दी यहाँ पे 6,600। ओके, हो गया। बाद में क्या करते हैं, बैलेंस शीट टैली करते। बैलेंस शीट टैली करते तो देखो यहाँ पे सारे पोस्टिंग किए क्या, देखो बिल्स पेबल के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थे, दैट्स वाई आउटर कॉलम में लिखा। बिल्डिंग के ऊपर भी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं तो दैट्स वाई आउटर कॉलम में लिखा। ये करने के बाद जो भी हमने डिडक्ट किया था वो डिडक्ट करके आउटर में अमाउंट लेके आओ, ऐड किया था वो ऐड करके आउटर में अमाउंट लेके आओ, फिर टैली करो। और बैलेंस शीट टैली हो रही है हमारी 47,600 को। कितने, 47,600 को। हमेशा याद रखो जब हम ये चेक कर, हमेशा याद रखो यहाँ पे जो भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है उसके बारे में प्रॉब्लम जब सॉल्व करते तो ये याद रखो वहाँ पे गुडविल ट्रीटमेंट क्या दी है एंड एज वेल एज उसकी जो भी पेबल अमाउंट है वो क्या है या उसके रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन दी। अगर ये प्रॉपरली फोकस करते तो यू कैन ईजिली अंडरस्टूड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर अकाउंटिंग। ओके, या वहाँ पे रिवैल्यूएशन पार्टनर्स या न्यू बैलेंस शीट कैसे एडजस्ट करनी या मेंटेन करनी आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये करते समय हमें और चीज़ें याद रखनी है। अभी क्या याद रखना है, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जो भी रिटायरिंग पार्टनर था उसके शेयर में गुडविल हमने क्या किया था, रेज किया था और वही अमाउंट हमने रिटर्न ऑफ की थी। तो हमने यहाँ पे पोस्टिंग करते समय हमने क्या किया था, तो रेज करने के बाद हमने एंट्री की थी
आज तक हम रेस करते तो हम क्या करते थे, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते, बट यहाँ पे याद रखो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में यहाँ पे रेस करने के बाद एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड इन शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मतलब उसके अकाउंट में लिखेंगे। ओके, एंड रिटर्न ऑफ की एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड रिमेनिंग पार्टनर्स को, क्या रिमेनिंग पार्टनर्स को, याद रहेगा सबको, यह डिस्ट्रीब्यूट होगा जो भी रिटायरिंग पार्टनर की अमाउंट रेज की थी वही अमाउंट हम रिटर्न ऑफ करेंगे किसे, रिमेनिंग पार्टनर्स के या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को। और क्या था ऐसे, देखो ये पूरा प्रॉब्लम ठीक से देखो, अभी ये क्लियरली दिख रहा है। ओके, सबको क्लियरली दिखना चाहिए, जो भी मैंने जैसे पहले स्क्रीनशॉट सिर्फ मैंने प्रॉब्लम के लिए है। ओके, जो भी आपको टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम है वो देख सकते हो आप टेक्स्ट बुक में से, और उसमें से रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, काफ़ी है। और आज के लिए हमने क्या क्या देखा वो भी एक बार रिवाइज करो कि क्या क्या देखा है। तो यहाँ पे हमें देखना है गुडविल रेज करना है एंड रिटर्न ऑफ करना है इन शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। सेकेंड एडजस्टमेंट याद रखनी है, अमाउंट पेबल टू पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर दैट कैन बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, यहाँ पे हमने लोन अकाउंट को ट्रांसफ़र किया था। अंडरस्टूड एवरीबॉडी, कंफर्म? ओके, देखो फिर से एक बार, अगर प्रॉफिट होता है तो वो डेबिट साइड दिखेगा, लॉस होता है तो क्रेडिट साइड दिखता है। यहाँ पे लॉस हुआ है दैट्स वाई यहाँ पे क्रेडिट साइड डिफरेंस दिख रहा है, प्रॉफिट होता तो यहाँ पे दिखता। ओके, तो ये क्रेडिट बैलेंस था, दैट्स वाई ट्रांसफ़र करते समय हमने कहाँ पे ट्रांसफ़र किया है, डेबिट साइड। अंडरस्टूड?